Friends, good evening. Today is the fourth lecture on Mission Physics, the Mike Square Education of Learning. In my third lecture, I had explained about the standard units. Physics में standard units की क्या ज़रूरत है, इनका यूज़ कैसे करते हैं हम, इनकी कहाँ कहाँ ज़रूरत है, इनकी नहीं होने से क्या होगा, इन सारी बातों पे हमने चर्चा की थी, जिसमें दो बात निकल के आई थी सामने। मैंने कहा था कि ये फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स मैं अपने अगले क्लास में बताऊंगा, इसका जिक्र करूंगा। आज हमारा ये फोर्थ लेक्चर इसी के ऊपर है। मैं फोकस करूंगा आज इन दो बातों पे। आई विल बी फोकसिंग ऑन द टू मैटर्स दैट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक इन एरेना ऑफ फिजिक्स, so one must understand nicely and be meticulous, be attentive to this class, at least to understand, so that in the future you will feel quite comfortable in learning physics. Fundamental, yesterday I had told that length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance, luminous intensity. These are the names given and these are the explanations and these are the symbols. For length, the name is meter and symbol is m. For mass, kilogram, kg. For time, seconds, s. Electric current, ampere, a. Thermodynamics temperature, Kelvin, k. Amount of substance, mole, mol. Luminous intensity is candela, that is cd. Now, out of this topics covered in three, these are the systems: CGS, FPS, MKS and SI. In 4 class we could have studied these fundamental units. The CGS stands for centimeter, gram and second. This is quite smaller units. FPS, foot, pound, seconds. You might have heard this if you have gone to purchase some cake, you might have gone 5-pound cake, 2-pound cake. During the birthday you might have come across these ideas, and during purchase you might have come across these words. So in some of the countries it is in foot, pounds and seconds. MKS, meter, kilogram and seconds, and last is SI, units. So whatever I am covering, that is the standard SI units which is applicable around the world. So almost yesterday I had given one point, then characteristics I had told that there should be acceptability in almost all the parts of the world, then only this can be a standard one. So SI units are such type of units, they are standard one. Now we will be covering length. We are going to the definitions first. Definitions I wanted to show. ये जैसे मैंने शुरू में कहा था, एक दादी नानी वाली कहानी है। इनकी जरूरत कैसे पड़ी और इनको कैसे स्वीकार किया गया। लेंथ, आई एम गोइंग टू डिफाइन लेंथ. लेट अस टेक द डेफिनेशन. डेफिनेशन को मैंने कहा था कि एक्सेप्टेबिलिटी. एक्सेप्टेबिलिटी मतलब मीटर, लेंथ इज मीटर. मीटर को हमने पूरी दुनिया ने कैसे माना, मीटर कैसे बना, हाउ मीटर वॉज मेड. सो इट इज a fundamental unit of length called and can be explained as the distance traveled by light. एक light, this is the light, suppose LIGHT light, if we pass through vacuum, this is vacuum, this light has been made to pass through vacuum and when it starts passing, जब ये अंदर से वैक्यूम के अंदर से जाना शुरू करेगा तो it will take some time to pass cross this vacuum. Now this will take some time. This time is 1 divided by 2 99 792 458. Now you can see, after dividing 1 by 2 99 792 458, a small figure, something xyz will come. Suppose x is coming. ये डिवाइड करने के बाद लाइट को जब हमने वैक्यूम से पास कराया, एक टाइम इसने लिया, दैट इज सेकेंड्स.
इतने सेकंड में जितनी दूर ये जाएगा, सपोज इतने टाइम छोटे से सेकंड में ये इतनी दूर ही पहुंच पाया वैक्यूम के अंदर, दिस इज द ट्रेवलिंग पोजीशन. सो दिस पोर्शन विल बी टेकन एज 1 मीटर डिस्टेंस एंड दैट विल बी अ स्टैंडर्ड वन. तो इतने टाइम में लाइट वैक्यूम में जितनी दूर तक पास कर पाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज 1 मीटर. And this 1 meter, this length is acceptable to full entire world. So this is the definition of length. When a light is passed through the vacuum for a 1/299,792,458 seconds, the distance traveled by light in a vacuum for this time will be taken as 1 meter as standard length. Now let us come to kilogram. I think you might have understood this. Now second one was a kilogram, that is kg, which is unit of mass. Now the mass of cylinder, platinum iridium, this is a mass, platinum plus iridium. ये दो केमिकल सब्सटेंस हैं, दिस टू सब्सटेंस आर केमिकल. इनका एक मास लिया गया, एक टुकड़ा प्लेटिनम एंड इरिडियम मेटल्स के को मिलाकर एक मास लिया गया एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में इसको रख दिया गया एक मान के कि ये 1 kg होगा. स्पेशलिटी क्या है? प्लैटिनम एंड इरिडियम कभी चेंज नहीं होंगे. It will not be changing its shape, position, anything. So a particular mass has been taken as 1 kg. There is nothing more specific about this. So I'm not going to explain much on this. Now we'll be going on seconds. This is a very, very important. Second is for time. This is our third part. Now cesium. For this, इनकी कहानी ये है, सेकेंड टाइम को हमने कैसे डिफाइन किया. cesium 133 was an element. इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें से एक वेवलेंथ निकलता है ऐसे. दिस इज अ काइंड ऑफ वेवलेंथ. तो वेवलेंथ इतना छोटा छोटा, कुछ कुछ इतने छोटे भी होते हैं, वेरी हाइपर फाइन. दीज आर कॉल्ड हाइपर फाइन वेवलेंथ. हाइपर फाइन वेवलेंथ इज एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सेवरल वेवलेंथ. इनकी वेवलेंथ किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है. इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, किसी की कम है, लाइक दैट. तो ज़्यादा कम ये निकालते रहते हैं. इसमें हमने एक ले लिया, एक सुपर फाइन हाइपर फाइन पोजीशन. सीसियम से जो वेवलेंथ निकला, एक रेडिएशन निकला, रेडिएशन निकल के वेवलेंथ के रूप में जा रहा है यहाँ से वहाँ तक. तो हमने 2 वेवलेंथ लिए जो कि हाइपर फाइन, बहुत ही नेग्लिजिबल डिस्टेंस दोनों में डिफरेंस था. ये सिलेक्टेड, इसके अंदर जो सब्सटेंस जा रहे थे, दिस सब्सटेंस हैज बीन टेकन, एक खास टाइम पीरियड के बाद ये रिपीट कर रहा था. तो ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ द रिपीटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक खास टाइम लेता था एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने के लिए. एंड दैट पीरियड इज 9,192,631,770. तो ये इस पीरियड के बीच में जब वो ये फिर से अपना कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा, मैंने दिखा था टाइम पीरियड ऑफ द रिपीटिंग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज टेकन एज 1 सेकेंड. मतलब 1 सेकेंड इज इक्वल टू दिस मच टाइम पीरियड. ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड 1 सेकेंड. तो इतने टाइम पीरियड के बाद आने के बाद एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता था यहाँ, ये एक विजुअल होता था. तो इसको हमने 1 सेकेंड मान लिया. तो इस तरीके से सेकंड की कहानी है. नाउ विद दिस सेकंड, 3 हमने क्या पढ़ लिया? लेंथ, मास एंड टाइम. ये मेन, ये इसी तीनों के ऊपर सारी दुनिया अभी चल रही है. अभी हम जब आएंगे एम्पेयर, केल्विन एंड मोल के ऊपर, दैट इज अ डिफरेंट, बट दिस इज द वेरी वेरी स्पेसिफिक जिसको हमें जानना है, समझना है. जैसे लेंथ में ये लेंथ मीटर टाइम, CGS, FPS, MKS, SI, लाइक दैट. नाउ वी आर कमिंग, 3 चीजों को जो हमने समझा, ये मेन जानना जरूरी है. अब हमारा एम्पेयर, लेट अस गो टू इलेक्ट्रिक फील्ड. एम्पेयर, इसमें भी हमने 2 पतले पतले वायर लिए ऐसे, और इसको हमने एक वैक्यूम में डाल दिया. ये है वैक्यूम, ये है वायर. इनमें इनके डिस्टेंस हमें बहुत क्लोज हमने रखा. यहां से हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया.
करंट इक्वल करंट वी आर पासिंग थ्रू दिस टू वायर्स। इसमें जो डिस्टेंस आया एम्पेयर, सपोज टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स विथ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, ये बहुत पतला तार है, बिल्कुल पतला तार एकदम। वैक्यूम एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, इसको हमने 1 मीटर के सेपरेशन पे वैक्यूम में डाल दिया। अभी इलेक्ट्रिक करंट्स एंड एस्टैब्लिश्ड इन द बोथ वायर इन द सेम डायरेक्शन एज अट्रैक्ट ईच अदर इफ इक्वल करंट्स। अगर हम दोनों में इक्वल करंट पास कराएं तो ये दोनों अट्रैक्ट, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इनके बीच में प्रेशर जो होगा, प्रेशर विल बी 1/2 × 10⁻⁻⁷। कल मैंने बताया था यूनिट को छोटा बड़ा करने के लिए 10⁻⁻6 होगा तो 2 माइक्रो, अगर 10⁻6 होगा तो 2 मेगा, लाइक दैट। इनमें अगर इतना प्रेशर हो, 1 मीटर के लेंथ पे 2 वायर डाला जाए, वैक्यूम के अंदर रखा जाए और करंट पास कराए इक्वल, तो इनमें जो करंट पास होंगे दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विथ दिस फोर्स एंड any of the current in the any of the wire is called 1 ampere। इतने स्पेसिफिकेशन के साथ अगर हम इसकी फिक्सेशन करें तो इसमें से जो करंट निकलेगा दैट इज 1 ampere current। That means 1 ampere current is what? If two negligible cross section wires are put in a vacuum and at a difference of 1 meter and the pressure between the two wires is 2 × 10⁻⁻7 Newton per meter, then the current passed through this will be called as 1 ampere। So 1 ampere current का ये definition हो गया। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे तो इसको और से इलेबोरेट करेंगे फिर से दोबारा से। केल्विन, कम टू केल्विन, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, दैट मीन्स हीट। हीट इज व्हाट? नाउ दिस इज 1/273.16 ऑन ए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब इसका ये है कि the fraction 1/273.6, the fraction 1/273.6 of the thermodynamic temperature of a triple point water is called 1 Kelvin. This Kelvin is a unit name and this is alphanumeric I had told. So this is numerical, this is alpha. So one of the characteristics alphanumeric. This will be called 1 by, अगर पूछा जाए कि 1 Kelvin क्या है तो you write 1/273.16, जो भी फिगर आएगा XYZ वो होगा 1 Kelvin of thermodynamic temperature. Next is mole. अब आगे एक कोई मॉलिक्यूल ले लो। मॉलिक्यूल मतलब सपोज ये एक गेहूं का एक दाना है, इसमें कितने एटम, कितने सारे एटम होंगे? तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना सब्सटेंस होगा वो हमें जानने के लिए मोल, जैसे एक मुट्ठी कोई अनाज ले ले या कोई भी चीज ले ले, उसमें कितना सब्सटेंस होना चाहिए, उसके माप के लिए हमें कार्बन का एटम का सहारा लेना पड़ा। कार्बन कौन सा हम लेंगे? दैट इज एटम इन 0.C12। कार्बन के 2-3 प्रकार है, C12, C13, C11, 12, 13, 14। सो वी टेक C12 टाइप ऑफ कार्बन। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल मिलते हैं दैट इज 0.012 kg, ये फिक्स होता है। द नंबर ऑफ एटम्स 1 kg कार्बन एटम इज कॉल्ड मोल। इसको हम बोलेंगे मोल। दैट मीन्स 1 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर जो सब्सटेंस होगा यो इतना। तो इससे हम किसी भी आइटम को कंपेयर कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ 1 मोल सब्सटेंस वी हैव टेकन, अगर उसकी मात्रा इतनी होगी तो। Now this is 6.022045 into 10⁻23। इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ये सिंपली एक बेसिक आइडिया के लिए हमने आपसे कहा, इसका एप्लीकेशन छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम देखेंगे। नाउ लास्ट इज योर कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला CD सिंबल। एक प्लेटिनम ले ले, फ्रीजिंग पॉइंट प्लेटिनम, इसके ऊपर एक ब्लैक बॉडी रखें जिसका एरिया होगा 1/6 लाख मीटर स्क्वायर।
ये जितना प्रेशर इसके ऊपर, दिस इज ए ब्लैक बॉडी। मैं ये कहानी इसलिए आपको बता रहा हूं कि कैंडेला कैसे बना, ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी कैसे लेते हैं। तो जब हम लेबोरेटरी में इसको बनाने लगे कि इसमें से कितनी इंटेंसिटी निकलेगी, ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकलता है, ऐसे रेडिएशन निकलेगा, तो इस एरिया का एक खास प्रेशर देके अगर इसके ऊपर हम रखें, प्रेशर कितना होगा 101,325, प्रेशर 101,325 न्यूटन पर मीटर। इतने प्रेशर के साथ एक ब्लैक बॉडी इस प्लेटिनम फ्रीजिंग पॉइंट प्लेटिनम के ऊपर रखें, तो इसमें से जो रेडिएशन निकलेगा दैट विल बी टेकन एज 1 कैंडुला। इतना कंडीशन मेंटेन करने के बाद जो रेडिएशन इसमें से निकलेगा that will be called 1 CD, और बाकी 2 CD, 3 CD, 4 CD, like that we can do. So this much is the explanations of fundamental quantities. Fundamental quantities की पूरी कहानी इतनी है। अब derived units के बारे में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिराइव यूनिट्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा, उसमें फिर से फंडामेंटल यूनिट्स आएंगे, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर ही डिराइव्ड होते हैं, नई यूनिट्स बनेंगे। तो ये सारे फंडामेंटल यूनिट्स एक एक करके फिर आपके सामने आएंगे जब हम डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में आपको बताने लगेंगे और छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे। सो दिस इज आई थिंक एनफ फॉर द डे। थैंक यू।